Good morning, students. Good Once morning, again, sir. good morning to all of you. Sir. Good morning. So once again, welcome back in social science subject live class for standard 10. Okay. Dear students, yesterday we have completed chapter number 1, resources and development in our subject geography. Okay. So as I told yesterday that from tomorrow onwards we are going to start with a new chapter, chapter number 4 in our subject geography. The name of the chapter is agriculture. Okay. Uh, chapter number 2nd and 3rd were not included in the syllabus for standard 10 last year. Okay. So as we discussed yesterday that we'll do only those chapters, okay, which were taken by the CBSE in the last year syllabus. Okay. So if there won't be any reduction in the syllabus, then we'll cover those chapters which we are leaving right now, okay, in later stages. Got it? So it may be possible that within a month or two, CBSE may release a new syllabus. Okay. So accordingly, people will work out. Got it? Any doubt to anyone? No, sir. No, sir. Okay. Chaliye. So just I am going to do the screen sharing. Just wait for a second. Yes. So that's it. Well, or maybe the typical issues. Okay. So India is an agriculturally important country. Why? Because 2/3 of the population is engaged in agricultural activity. Now, what is the 2/3? 2/3 is around 66%. Okay. So the 66% population of India is engaged in agricultural activity. Okay. So agriculture is a primary activity. Which activity agriculture is? Primary. Okay. Because Primary. in economics, you may come across the different type of economic activities. Okay. Last year you might have. So the different type of economic activities are primary activity, secondary activity, and tertiary activity. So that you will study in economics. Okay. So agriculture is a primary activity. Primary Okay? activity. Now, besides food grain, it also produces raw material for various industries. Okay. So food grains means, what are the food grains? The food grains are those which we consume as a food. Okay. So wheat, rice, jowar, bajra, okay, ragi. So all these are food grains. But apart from that, agriculture also produces raw material for various industries. For example, cotton. Okay. So cotton is produced in agriculture, but we are not eating it. So cotton is used in industry. Cotton is used in which industry, beta? It is used in textile industry. It is used in textile industry. Okay. So agriculture produces the raw material for various industries. बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए एग्रीकल्चर में क्या होता है? रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है. Okay. Then there are some other agricultural products like tea, coffee, spices. Okay. These are also exported to different parts of the world. Okay. अभी यहाँ तक का सेक्शन जितना था, as far as concerned about examination point of view, there is nothing important. ठीक है. सिर्फ फिर भी ध्यान रखना that 2/3 of India's population is engaged in agricultural activity.
ओके, इंडिया का जो 2/3 पॉपुलेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में? एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। Yes, sir. What is agriculture is a primary activity. Okay, just wait for a second. Thank you, students. So now let us come to types of farming. Okay, so broadly farming or agriculture, broadly farming or agriculture could be classified into two categories. ठीक है, फार्मिंग को ब्रॉडली कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, टू कैटेगरीज। हाउ मेनी कैटेगरीज, Two. in how many categories Two. it can be classified into two categories। ठीक है, तो which are these two categories? ठीक है, so पहला होगा, the first is, just a minute, so the first category is subsistence farming। The first category is subsistence farming, or we can say subsistence agriculture। ठीक है, then second type of farming is commercial farming। What is it? Commercial farming. Okay, so subsistence farming or subsistence agriculture, and second is commercial farming. Now subsistence agriculture can again be divided into two more categories। Okay, so what are the two categories within subsistence agriculture? That is intensive subsistence agriculture। What is it? Intensive subsistence farming। And next is primitive subsistence farming। Okay, so it is what? Intensive subsistence farming and primitive subsistence farming। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. Intensive subsistence farming and primitive subsistence farming, and one is the commercial agriculture। Now commercial agriculture is of many types। ठीक है, so जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसको भी हम किस में रखते हैं, कमर्शियल फार्मिंग। Is it clear? So these are the two major categorization of agriculture or farming: subsistence farming and commercial farming। What is subsistence farming? Intensive subsistence farming and primitive subsistence farming, and next is commercial farming। Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, friends। चलिए, so agriculture is an age-old economic activity in our country। Age-old means from many centuries back। ठीक है, agriculture is the primary activity of people in
इंडिया। इंडिया में जो लोग हैं वो सभी लोग, है ना, बाय द टाइम इमेमोरियल पीपल वेर डूइंग एग्रीकल्चर। ओवर दीज इयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। ओके, यानी खेती करने के तरीके बहुत तेजी से बदले हैं। डिपेंडिंग ऑन, क्यों बदले हैं? बिकॉज ऑफ चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, चेंज इन टेक्निकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मतलब खेती करने के तरीकों में बदलाव आया जिसके कारण कल्टीवेशन में चेंजेस आए। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। सो फार्मिंग दैट इज एग्रीकल्चर बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। यहां तक बात आई समझ में? Yes. 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 Yes, Sir. yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. So this is primitive subsistence farming, ठीक है। So जो फर्स्ट कैटेगराइजेशन है वो क्या है हमारा? primitive subsistence farming. This type of farming is still practiced in few pockets of India. Why? Because this is the oldest farming technique. ये जो है खेती करने का क्या है? ओल्डेस्ट तरीका है, सबसे पुराना। यानी जब इंसान बिल्कुल आदिवासियों की तरीके से, आदि मानव के तरीके से जब जीवन जीता था, दैट टाइम द ह्यूमन बीइंग डिड फार्मिंग विद दिस वे, दैट इज व्हाट द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द फार्मिंग प्रैक्टिसेस, खेती करने के तौर तरीकों में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने के कारण, खेती करने के तरीकों में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने के कारण नाउ द फार्मर्स आर, ठीक है, जो किसान हैं वो नए नए तरीके की खेती कर रहे हैं। सो द नंबर ऑफ पीपल डूइंग primitive subsistence farming is reducing, okay, but still it is practiced in few pockets of India. इंडिया के कुछ इलाकों में अभी भी primitive subsistence farming practiced है, okay. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dough, digging sticks and family or community labor, ठीक। primitive subsistence farming क्या होगा? small patches of land, यानी खेत बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे, छोटे खेत होंगे। primitive tools मतलब पुराने जमाने के जो खेती करने के औजार हैं, ठीक है, बैल है, बखर है, हल है, डिगिंग स्टिक्स है ना, खोदने के लिए लकड़ी है, और फैमिली लेबर काम करेगा, यानी मशीनरी का यूज नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर द क्रॉप्स ग्रोन। यानी एक बार बीज डाल दिया, देन आफ्टर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन, the growth of crop entirely depends on the natural condition. बारिश हो गई, जितनी हो गई उतनी हो गई, no use of chemical fertilizer, जो भी natural fertility of the soil है उसके बेस पर ग्रो होगा, ठीक। it is a slash and burn agriculture. किस प्रकार की फार्मिंग है? which type of farming is it? It is a Slash and burn. slash and burn. Slash and burn. Now, what is slash and burn agriculture? अब इस slash and burn agriculture होता क्या है, ठीक है। Now this we discussed in standard 8th also. Standard 8th में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। We discussed it with the name शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ा था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
This is what slash and burn agriculture. Yes, sir. So it is a slash and burn agriculture. इसको shifting cultivation भी कहते हैं. What the farmers did? Farmers clear a patch of land and produce cereal and other food crop to sustain their families. जंगल में, फॉरेस्ट में, जंगल के किसी एक टुकड़े के सारे पेड़ काट के उसको बिल्कुल क्लियर लैंड कर देंगे, काम की लकड़ी काट ली, जो कचरा बचा उसको जला लिया. तो पेड़ काटने के लिए स्लैश और कचरे को जलाने के लिए बर्न यूज किया गया है. दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न. व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, 2-3 साल तक उस जगह पर खेती करी. जब सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, देन द फार्मर्स शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन. दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग allows nature to replenish the fertility of the soil. इस प्रकार के शिफ्टिंग से क्या होगा? सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी रिप्लेनिश, वापस लौट आती है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस. लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो. तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लैंड प्रोडक्टिविटी यानी जमीन में से जो फसल पैदा होती है उसकी प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी कैसी होगी? लो होगी. बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और एनी अदर मॉडर्न इनपुट्स. लैंड प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है? क्योंकि इस एग्रीकल्चर में फार्मर किसी भी फर्टिलाइजर या अदर मॉडर्न इनपुट्स का यूज नहीं करते. It is known by different names in different parts of the country. ठीक है? This shifting cultivation is named in different parts of the country by different names. अलग अलग इलाकों में इसका नॉमिनेशन अलग है. So in northeastern states means 7 sisters. You remember the chapter in your संस्कृत में? Yes, sir. सप्त भगिनी. Yes, sir. हाँ, Yes, वो जो sir. 7 north eastern states, it is known as झूमिंग. Okay, whereas in Manipur it is कमालू. बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में इसको क्या बोलते हैं? दीपा. ठीक है? Then in different parts of the world it has different names. Milpa in Mexico and Central America, Congo in Venezuela. Hey, these are the different names given. Examination point of view say you have to learn these names. आपको ये सारे नेम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करने पड़ेंगे? लर्न. ये वाला हिस्सा. ठीक है? In different parts of India, it is known by different names. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Now, so that was what? Primitive subsistence farming. ठीक है? अब primitive subsistence farming है. So within the subsistence farming, next is what? Intensive subsistence farming. Next क्या होगा? Intensive subsistence farming. Intensive subsistence farming. So the next Intensive classification is intensive subsistence farming. Now this type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. अब इसका क्या मतलब है? तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग उन एरियाज में की जाती है, उन एरियाज में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही है जहां पर हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड.
अब हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड का मीनिंग क्या है बेटा, कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कंट्री के उन इलाकों में होती है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में अवेलेबल लैंड कम है। यानी एक फार्मिंग फैमिली, एक किसान के पास अवेलेबल लैंड कैसा है, कम है। ठीक है, सो इन दैट एरियाज फार्मर्स आर डूइंग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उन इलाकों में फार्मर्स क्या करते हैं, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर डूइंग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. It is a labor intensive farming. Now, labor intensive मतलब इस टाइप की फार्मिंग में लेबर ज्यादा लगेंगे। ठीक है, इट इज ए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। तो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग मतलब मजदूर काफी ज्यादा लगते हैं। ठीक है, वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा होगी। हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी काफी ज्यादा यूज करना पड़ेगा। एंड इरिगेशन इज यूज, इरिगेशन इज यूज मतलब बारिश के सीजन के अलावा जो विंटर सीजन है और इवन इन द समर सीजन द फार्मर्स आर टेकिंग क्रॉप विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। फार्मर्स क्या करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज की मदद से फसल लेते हैं। एक दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस leading to the division of land among successive generation has rendered landholding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Okay, thus there is enormous pressure on agricultural land. अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि इंडिया के जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर द फार्मर्स आर नॉट वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं है कि दे कुड गेट ए जॉब either in the government sector or private sector. Their entrepreneur skills are also very less. वो लोग कोई उद्योग धंधा भी नहीं खोल पाते। ठीक है, इसलिए उनके पास कमाने का, लाइवलीहुड कमाने का सिर्फ एक जरिया है, एंड व्हाट इज दैट, एग्रीकल्चर। ठीक, अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की नौबत क्यों आई? It is because of the right of inheritance leading to the division of land among successive generation. ठीक है, अब होता कैसे है, ये गड़बड़ कहां से है ना, गड़बड़ कैसे है, और फार्मर्स जो हैं वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की सिचुएशन में कैसे पहुंचे। तो उसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक फार्मर है जिसके पास में कितने एकड़ ऑफ लैंड है, 100 एकड़ ऑफ लैंड। हाउ मच? 100. नाउ दिस वाज द कंडीशन ऑफ द फार्मर इन द ईयर 1920। तो 1920 में राजाराम नाम के किसान थे जिनके पास 120 एकड़ जमीन थी। अब उस जमाने में फैमिली प्लानिंग वगैरह तो था नहीं, तो जितने बच्चे हो रहे थे हो रहे। तो
राजा राम के पास 1920 में 100 एकड़ ऑफ लैंड थी, ठीक है। राजा राम के कितने बच्चे हुए? 5 लड़के। राजा राम के कितने लड़के? 5 ये पांचों लड़के बड़े हो गए, शादी वगैरह सब हो गई 1950 आते आते। 30 सालों में, 30 इयर्स में राजा राम के 5 बच्चे हुए, बड़े भी हो गए, शादी वगैरह हो गई। अब इनहेरिटेंस ऑफ लैंड मतलब जमीन जायदाद सभी लोगों में बराबर बढ़ जाएगी। तो अब हर एक के पास कितना एकड़ ऑफ लैंड आया? 20 एकड़ 20 एकड़ ऑफ लैंड सभी के पास है ना। अब ये जो पहला सन था, पहले सन के 3 बच्चे हुए, सेकंड वाले के 2 हुए, थर्ड वाले के 1 ही रहे, जो फोर्थ वाला है, ठीक है, इसके 5 लड़के हुए और फिफ्थ वाले के 2 लड़के। अब ये पहले वाले के पास 20 एकड़ ऑफ लैंड था, इसके 3 लड़के हैं, तो हर एक में अराउंड कितनी? 6.7 एकड़ ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना। ये चौथे वाले के 5 लड़के हैं, तो एक लड़के के पास कितनी जमीन आई? 4 इसका एक ही लड़का था, तो इसके पास कितनी एकड़ जमीन रह गई? 20 एकड़ 20 एकड़। तो 1980 आते आते अगले 30 सालों में उसी फैमिली का एक बच्चा 20 एकड़ का बड़ा किसान है, और ये क्या सब कैसे हो गए? छोटे छोटे किसान। ये सब कैसे हो गए? छोटे छोटे किसान। इनके पास एग्रीकल्चरल लैंड कैसा है? कम है। अब ये सारे के सारे अनपढ़ हैं, इतना अच्छा एजुकेशन नहीं लिया कि दे कैन गो फॉर ए गुड जॉब और सर्विस। तो चाहे किसान बड़ा हो चाहे छोटा हो, है ना, उसका लाइवलीहुड किससे चल रहा है? एग्रीकल्चर से। अब जिसके पास में, जिस व्यक्ति के पास 20 एकड़ जमीन है, कितनी है? 20 एकड़ 20 एकड़। जिस लड़के के पास 20 एकड़ ऑफ लैंड बचा, वो साल में ओनली 2 फसल लेगा तो भी उसके पास सफिशिएंट इनकम आएगी। परंतु जिन लोगों के पास 2-2, 4-4 एकड़ जमीन बची है, वो यदि साल में 1 या 2 फसल लेंगे तो उनका घर खर्चा चल पाएगा क्या? नहीं। In that case, to survive their family, what they have to do? They have to do the intensive subsistence farming. अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज द मेजर रीजन, ये सबसे बड़ा कारण है कि कंट्री में बहुत सारे ऐसे एरिया जहां पर देयर इज ए हाई पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर कैसा है? हाई है। वहां पर क्या होती है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होगी। जिन फार्मर्स के पास एग्रीकल्चरल लैंड कम है, वो क्या करेंगे? बायोकेमिकल इनपुट्स यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, एंड दे हैव टू डू द इरिगेशन आल्सो। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now, so the second broad classification is commercial farming, ठीक है। अब जो फार्मिंग है, फार्मिंग में वी हैव द 2 मेजर क्लासिफिकेशन, subsistence farming and commercial farming. In case of subsistence farming,
subsistence farming में we discuss the two subcategories. What are the two subcategories? Intensive subsistence farming and primitive. ठीक है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में खेती बाड़ी करने के सारे पुराने तरीके, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फार्मिंग के सारे मॉडर्न तरीके, बावजूद इसके द ओवरऑल प्रोडक्शन इज वेरी लेस। ओवरऑल प्रोडक्शन कैसा है? बहुत लेस है, कम है। द मेजर रीजन ऑफ द लेस प्रोडक्शन इज, वो जो लेस प्रोडक्शन है उसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण क्या है? तो द बिगेस्ट रीजन फॉर द लेस प्रोडक्शन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। जमीन की मात्रा कैसी है? बहुत कम है। अब agricultural land holding is very less, है ना? The farmers are either having 2 acre of land, 3 acre of land, or maybe 4 acre of land. So whatever the method you adopt, okay, there is a maximum limitation on the production capacity of agricultural land. Agricultural land की production capacity एक हद तक होती है। तो यदि जमीन कम है तो कितना भी मॉडर्न वे में करो, ओवरऑल प्रोडक्शन कैसा होगा? कम होगा। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whether the farmer do the commercial whether the farmer do the primitive farming or maybe intensive subsistence farming, in both the cases the overall production is comparatively less and the farmer is only able to meet the basic needs of the family. Overall production comparatively बहुत कम होगा और इसलिए ज्यादा से ज्यादा फार्मर क्या कर पाता है? अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाता है। ठीक है, कार नहीं खरीद पाएगा, ट्रैक्टर नहीं खरीद पाएगा, पर अपने परिवार का खर्चा चला लेगा। ठीक, उसके अगेंस्ट में, कॉन्ट्रास्ट में देयर इज ए कमर्शियल फार्मिंग। नाउ एज अ कमर्शियल फार्मिंग नेम सजेस्ट, कमर्शियल मीन्स फॉर सेलिंग इट इनटू मार्केट। तो कमर्शियल फार्मिंग में द ओवरऑल प्रोडक्शन इज क्वाइट हाई। In commercial farming, the overall production is very high. Because of that, the farmer is able to sell its crop in open market. Overall production कैसा होता है? बहुत हाई होता है। इसलिए फार्मर क्या कर सकता है? The farmer is able to sell its crop in open market. Is it clear up to here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What are the main characteristic? The main characteristic of commercial farming is the use of higher doses of modern inputs. जितने भी मॉडर्न इनपुट्स हैं, यानी जो लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं, तो लेटेस्ट एग्रीकल्चरल मटेरियल अवेलेबल है ना, सभी को फार्मर्स क्या करता है? यूज करता है। ठीक है, सो व्हाट टाइप ऑफ मॉडर्न इनपुट्स द फार्मर इज यूजिंग? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, दैट इज HYV seeds. Then farmer is using chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain the higher productivity. Then next is the degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. ठीक है, यानी in different parts of country the degree of commercialization, यानी खेती का कितना कमर्शियलाइजेशन है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में डिफरेंट है। देश के एक इलाके से दूसरे इलाके में
डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन की ज्यादा लेवल पर कमर्शियलाइजेशन है या कम लेवल पर, वो कैसा है, डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज ए कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज ए सब्सिस्टेंस क्रॉप। जैसे राइस है ना, चावल की खेती, तो हरियाणा और पंजाब में राइस इज कल्टीवेटेड ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल मतलब इतनी ज्यादा एरिया में राइस का कल्टीवेशन करेंगे, इतनी ज्यादा पैदावार होती है कि द फार्मर्स इज सेलिंग द राइस इनटू ओपन मार्केट। ठीक, परंतु ओडिशा में द फार्मर्स आर कल्टीवेटिंग राइस एज ए सब्सिस्टेंस क्रॉप। वहां पर मॉडर्न इनपुट्स, बाकी चीजों की कोई सिरफोड़ी नहीं है। हाँ भैया, जितनी फसल पैदा हो गई, इतनी पैदा हो जाती है कि वो अपना खाना भरपेट खा लेते हैं। ठीक है, मार्केट में राइस को सेल करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का उनका कोई रोल नहीं। इज इट क्लियर अप टू हियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is already 11:20 students. Okay, so there is a time for the next class in this room. So we are forced to bind up the session. So that's all for today live class, students. Thank you, sir. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.